गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्किल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर जो ह्यूमन सिस्टम है वो अपन ने शुरू किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने शुरू किया था। उस सिस्टम के अंदर कि अपन ने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, एटम टू मॉलिक्यूल्स, देन कंपाउंड, a cell is formed, then tissue system, organ system and then body। फिर अपन ने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। बेसिकली अपन ने बताया था कि द सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विथ डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे वी स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रीफ। Basically the digestive system is made up of two parts. One is alimentary canal and another is accessory glands. Okay, alimentary canal, in last class we discussed that there is two type of alimentary canal, but in human complete type of alimentary canal is present. Basically two alimentary canal, one is complete and another is incomplete alimentary canal is found in different organisms. In complete alimentary canal, ध्यान से सुनना, in complete alimentary canal there is two pores. There are two pores, one for food eating and another for waste material digestion are available. Such type of alimentary canal is called as complete alimentary canal. And incomplete alimentary canal, there is only single pore for food intake and waste material ejection. Such type of alimentary canal is called as incomplete alimentary canal. Okay, here is the simple diagram of human digestive system, which is start from the mouth and go to the anus. Okay, it is the simple diagram. Mouth opens in buccal cavity. Alimentary canal, it is the mouth, and all the parts from mouth to anus are included in alimentary canal. Okay, alimentary canal includes mouth, buccal cavity. Mouth opens in buccal cavity, buccal opens in pharynx, pharynx open in esophagus, esophagus open in stomach, stomach open in intestine. Intestine is two of type, large intestine and small intestine. There are three parts in large intestine: duodenum, jejunum and ileum. While in small intestine there are also three parts: cecum, colon and rectum. And here some accessory glands are present which are helpful in digestion of food material. There are basically three types of accessory glands are present in human body. One is salivary gland, another is liver and third one is pancreas. Okay, today we start from the alimentary canal. Today we start from the alimentary canal. ध्यान से देखना, डायग्राम को आप लोग पॉज करके आराम से, although the diagram is also available in very common textbook also. Alimentary canal, alimentary canal. Okay, alimentary canal is a tube like coiled structure. कहीं कहीं पर ये ट्यूब लाइक है और कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या है, कोइल लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज एलिमेंट्री कैनाल. अगर अपन बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली है क्या, ट्यूब लाइक और कोइल्ड स्ट्रक्चर विच इज हेल्पफुल इन फूड इंजेशन. फूड इंजेशन मतलब फूड का इंटेक करना, फूड डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, फूड के डाइजेशन में भी हेल्पफुल है एंड फूड एब्जॉर्प्शन में भी जो है हेल्पफुल है. फूड एब्जॉर्प्शन में भी क्या है, हेल्पफुल है. सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. एंड आल्सो फूड वेस्ट मटेरियल इजेशन में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है. मतलब एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली है क्या, अ स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी और द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विच इज इन्वॉल्व इन फूड इंटेक, digestion of food, food absorption and ejection is called as alimentary canal. अब यहाँ पर देखें कि it is coiled muscular structure. It is coiled muscular structure. Coiled muscular structure मतलब ये कहीं कहीं पर तो ट्यूब लाइक है, कहीं कहीं पर कोइल्ड है, बट इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर. मतलब इसके अंदर मसल्स है, मसल्स की वजह से ही इसके अंदर जो भी फूड मटेरियल है उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम माउथ टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन और फ्रॉम माउथ टू दी कह सकते हैं एनस. अगर अपन बात करें
यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लाइव के अंदर जो जिंदा इंसान है उसके अंदर इसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है। इसकी लेंथ क्या होती है? कम होती है, शॉर्ट होती है। लाइव के अंदर इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, जबकि जो डेड है उसके अंदर ये क्या हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? देखना दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल का अगर एक अपन काम देखें तो इसका काम ये भी होता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन करना। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सपोज मैं कह रहा हूँ ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, और एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर। अंदर की तरफ क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये एलिमेंट्री कैनाल दो टाइप के, मैं एक एलिमेंट्री जस्ट एक कार्टून डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। इट इज अ सिंपल एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या है? अंदर की तरफ इसकी कह सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या काम करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। अब लाइव के अंदर जितने भी जिंदा इंसान होते हैं उनके अंदर तो क्या होता है? फूड मटेरियल होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन करना जरूरी होता है, तब इनका कुछ काम रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान की डेथ होती है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये खुल जाते हैं। मतलब अगर मैंने इस एलिमेंट्री कैनाल को पकड़ा और इसको अगर खींचा तो ये क्या होंगे? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। इसका मतलब यही तो हुआ कि जिंदा के अंदर तो जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वह क्या होती है? कम होती है, और जैसे ही इंसान की डेथ हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, अगर अपन बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति कैसे होती है, एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति या ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से भी होती है और एंडोडर्म से भी होती है। हालांकि 10th लेवल में अपना इतना नहीं है तो इसको अपन ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन शुरुआत करें तो वो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। ओके, टुडे वी स्टार्ट द माउथ। माउथ क्या है क्या नहीं है देखते हैं। माउथ क्या है? माउथ इज अ स्लिट लाइक एपरेचर, मतलब कह सकते हैं स्लिट लाइक ट्रांसफर एपरेचर विच इज प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन हेड के अंदर एक स्लिट लाइक एपरेचर है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? माउथ कहते हैं। माउथ के चारों तरफ लिप्स आर देयर, अपर लिप एंड लोअर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप के अंदर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है, लिप की अगर बात करें, लिप के अंदर लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। लिप के अंदर क्या होते हैं? लेबियल ग्लैंड्स होती है। हालांकि 10th लेवल में इतना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। लेबियल ग्लैंड्स क्या करती है? इट सीक्रेट म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो लिप्स है, लिप्स की इनर सरफेस के ऊपर लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट व्हिच सीक्रेट म्यूकस का काम क्या है कि ये जो लिप है अपने उनको मॉइस्चर देना, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू दी लिप्स। अगर अपन और देखें कि माउथ जो है इट ओपन्स इन बक्कल कैविटी, ये कहाँ होगा? बक्कल कैविटी के अंदर माउथ जो है जाकर ओपन हो जाएगा। बक्कल कैविटी के भी हालांकि बेसिकली 2 पार्ट है, बट 10th लेवल के अंदर इतना नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, अपन वही पढ़ेंगे जो 10th लेवल के काम का है। माउथ किस में ओपन होगा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर। वन इज कॉल्ड एज पैलेट, another is tongue and the third one is teeth। ओके, बात करते हैं पैलेट की। हिंदी में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन। पैलेट का जो तालू होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। तालू को क्या बोला जाता है? पैलेट बोला जाता है। मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, पैलेट को समझ लेते हैं। पैलेट बेसिकली जो पैलेट है, जो बक्कल माउथ ओपन इन बक्कल कैविटी, ये वाला माउथ है और माउथ किसके अंदर खुल रहा है? बक्कल कैविटी के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर खुल रहा है। बक्कल कैविटी की जो छत है, द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ पैलेट। रूफ जो है, रूफ ऑफ अपन कह सकते हैं इट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बेसिकली इट इज 2 of type, one is hard palate and another is soft palate। एक तो होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। स्टूडेंट, आप अपनी जो टंग है उसको अपनी बक्कल कैविटी की रूफ पर थोड़ा सा घुमाओ। अगर आगे की तरफ अपन घुमाते हैं तो आपको आगे की तरफ जो है बक्कल कैविटी का जो छत है उसके आगे की तरफ जो है आपको कुछ उभार
कुछ गर्त, कुछ उबार, मतलब कुछ रिजेस, कुछ फोरोज, कुछ रिजेस, कुछ फोरोज दिखेंगे। इट इज व्हाट, इट इज हार्ड पैलेट। जबकि पीछे की तरफ जाओ, अपनी टंग को पीछे की तरफ लेके जाओ तो वहां आपको सॉफ्ट पैलेट दिखाई महसूस होगा। तो पैलेट क्या है? मुख, जो माउथ है, माउथ ओपन इन दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कितने पोर्शन होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स आर देयर बक्कल कैविटी। वन इज पैलेट, अनदर इज टंग एंड थर्ड वन इज टीथ। पैलेट इज द पार्ट of buccal cavity which make the roof of buccal cavity। मतलब बक्कल कैविटी का रूफ का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? पैलेट करता है। पैलेट दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। या अपन कह सकते हैं द एंटीरियर पोर्शन ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट, while the posterior portion of roof of buccal cavity is made up of soft palate। It's all about the palate। Okay। देन अगर अपन बात करें पैलेट के बाद टंग की बात करें, या चलो पहले टीथ की बात कर लेते हैं। टीथ की बात करें, टीथ इज व्हाट? बेसिकली ह्यूमन के अंदर 3 कंडीशन देखने को मिलती है। वन इज थिकोडोंट, कंडीशन है थिकोडोंट। थिकोडोंट का क्या मतलब होता है? अगर टूथ जो है या टीथ जो है, अगर टीथ बोन से बनी हुई सॉकेट्स के जॉ के अंदर जो जबड़े होते हैं उसके अंदर जो सॉकेट्स है वो बोन से बनी, उसके अंदर अगर एमर्ज्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज थिकोडोंट टीथ। ये ह्यूमन टीथ की बात करेंगे अपन। थिकोडोंट का क्या मतलब है वापस समझ लेना। इफ टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन जॉ इज कॉल्ड एज थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। मतलब अगर जो टीथ है जबड़े में, जॉ के अंदर बोन से बनी हुई कुछ सॉकेट्स है, उसके अंदर अगर धसे हुए हैं, उसके अंदर एम्बेडेड है, सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज थिकोडोंट टीथ। उसके बाद बात करें थिकोडोंट के बाद बात करें डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। डाइफायोडोंट का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में इफ टीथ आर originated 2 times, such type of teeth are called as diphyodont teeth। क्या कहा मैंने कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में, उसके लाइफ साइकिल के अंदर अगर टीथ का ओरिजिन 2 टाइम होता है, 2 बार होता है, such type of teeth are called as diphyodont teeth। जो पहली बार टीथ उगते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, such type of teeth are called as temporary teeth। उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ क्या होते हैं कि जो पहली बार उगेंगे बट आफ्टर सम टाइम ये गिर जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेसिडुअस टीथ। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। सेकंड टीथ जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? परमानेंट टीथ बोलेंगे। परमानेंट टीथ बोलेंगे मतलब ये एक बार उग गए तो ये कभी भी वापस गिरेंगे नहीं, कभी भी टूटेंगे नहीं। सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड डेफिनेशन की बात करें, हेटेरोडोंट। क्या होता है? हेटेरोडोंट। ये अपन ह्यूमन टीथ की जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसके बारे में बात करें। हेटेरोडोंट का क्या मतलब है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, इफ इन अ ऑर्गेनिज्म टीथ के स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है अलग अलग है, सच टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज हेटेरोडोंट टीथ। बिल्कुल इजी है, आराम से समझते हैं। मैं वापस रिवाइज कर लेता हूं। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अपन ने क्या कहा? एलिमेंट्री कैनाल ये तो ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? अगर ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें भोजन को या फूड को अंदर लेने का जैसे माउथ, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने का जैसे एनस, ऐसे 2 पोर है, मतलब फूड को इनटेक करने का और वेस्ट मटेरियल को इजेशन करने के लिए देयर आर 2 सेपरेट पोर्स अवेलेबल। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फिर मैंने कहा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें फूड को इनटेक करने का और वेस्ट मटेरियल को इजेस्ट करने का, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का, देयर इज ओनली 1 पोर अवेलेबल। सच एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से आज अपन ने माउथ को शुरू किया कि माउथ क्या है। तो माउथ
is a transverse slit-like aperture which is surrounded by lips, upper lips and lower lips. अपर लिप्स और लोअर लिप्स के अंदर बात करें कि लिप्स की जो इनर सरफेस होती है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ लिप्स लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. क्या होती है? लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. हालांकि 10th का डेटा नहीं है. लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. लेबियल ग्लैंड्स क्या किसका सिक्रेशन करती है? इट सिक्रेट म्यूकस. ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है. म्यूकस क्या करेगी? जो लिप्स की जो सरफेस है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी. ओके. और देखें कि माउथ जो है, माउथ ओपन इनसाइड अ कैविटी दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी और वी कैन आल्सो कॉल इट ओरल कैविटी. इन बक्कल कैविटी there are 3 important structures are present. One is called as palate, another is called as tongue and third one is called as teeth. अब बक्कल कैविटी के अंदर जॉज भी होते हैं. आप देख सकते हैं एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है. लोअर जॉ मूवेबल होता है, बट जबकि जो अपर जॉ होता है इट इज नॉन मूवेबल. ध्यान देखना, बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी इज सराउंडेड बाय जॉज, चिक एंड कह सकते हैं रूप के ऊपर अगर अपन बात करें इसकी पैलेट की, इसकी जो फर्श की बात करें, जो नीचे जो फर्श है उसकी बात करें, वहां पे क्या होता है? टंग होता है. जॉज की बात करें, देयर आर 2 जॉज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. लोअर जॉ इज मूवेबल इन नेचर व्हाइल अपर जॉ जो होता है इट इज नॉन मूवेबल. फिर मैंने बताया कि पैलेट क्या है, कि पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी. देयर आर 2 टाइप ऑफ पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. हार्ड पैलेट जो होता है वो बक्कल कैविटी की रूफ का एंटीरियर पोर्शन होता है. हार्ड पैलेट इज व्हाट? इट इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट. व्हाइल द सॉफ्ट पैलेट क्या है? द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट. पैलेट के बाद अपन ने बात किया टीथ. टीथ, ह्यूमन टीथ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो अपन ने देखते हैं कि ह्यूमन टीथ थिकोडोंट टाइप के होते हैं, डाइफायोडोंट टाइप के होते हैं और हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं. थिकोडोंट का क्या मतलब है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो टीथ है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट विच आर मेड अप ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द जॉ. जॉ के अंदर जो जबड़े हैं उसके अंदर कुछ सॉकेट्स बने हुए हैं, ऐसे सॉकेट बने हुए हैं, ऐसे अगर सॉकेट्स कह सकते हैं, ऐसे सॉकेट्स बने हुए हैं जिसके अंदर क्या है? दांत, अगर जो टीथ है वो धसा हुआ है. सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ. ऐसे टीथ को अपन लोग क्या बोलेंगे? थिकोडोंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट का क्या मतलब है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टीथ का ओरिजिन लाइफ साइकिल के दौरान 2 टाइम होता है. देयर आर 2 टाइम ओरिजिनेटेड इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट ऐसे टीथ जो पहले बनेंगे, जो पहले बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेम्पोररी टीथ. ये टेम्पोररी टीथ क्या होते हैं? कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेसिडुअस टीथ और दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिल्क टीथ. इसको अपन मिल्क टीथ या अपन हिंदी में कहें तो दूध के दांत भी कहते हैं. जब एडल्टनेस आती है, एल्डोरेंस होता है, तब टेम्पोररी टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. मतलब ऐसे टीथ जो कभी भी जिंदगी में अब टूटेंगे नहीं, जिंदगी भर अपने साथ रहेंगे. सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज टेम्परेरी टीथ. ओके. थर्ड है हेटेरोडोंट. ऐसे टीथ जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है. सच टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज हेटेरोडोंट टीथ. ओके. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट. आराम से इस चैप्टर को अपन बिल्कुल धीरे धीरे 10-15 मिनट का अपन वीडियो बनाएंगे. आराम से इस चैप्टर को ध्यान से देखना. ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच.